چین اور کرغزستان کی سرحد پر 7 شدت کا زلزلہ چینی شہر اکسو سے 140 کلومیٹر مغرب میں آیا۔ زلزلے کی گہرائی 27 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے چین، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ بھارتی شہر نئی دلی بھی زلزلے کے جھٹکوں سے محفوظ نہیں رہا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ M1 پر اسلام آباد ٹول پلازہ سے برہانہ اور پشاور سے ثوابت تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M2 بلکسر سے اسلام آباد مین ٹول پلازہ تک بند ہے۔ M14 کوکھلا سے کوٹ بیلیاں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول متاثر، متعدد پروازیں منسوخ کی گئیں۔ لاہور میں یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت برقرار، پارہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مزید اس پر تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور سلیمان صدیق سے۔ جی سلیمان۔ شہر میں سردی کا راز برقرار ہے۔ یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کا احساس مزید بڑھ گیا ہے۔ شہر میں اس وقت 5 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور نمی جو ہے وہ 92% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 9 اور کم سے کم 6 ریکارڈ کیا۔ ساتھ ہی شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، چونکہ کل کی نسبت آج شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں معمولی کمی دیکھنے کو نظر آئی ہے اور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کے امکانات نہیں ہیں، بلکہ شہر کا مطلع جو ہے وہ صاف اور خشک رہے گا اور سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو نظر آئے گا۔ ساتھ ہی محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرے۔ اسموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے تو شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز برطرفی کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارج بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ شوکت عزیز صدیقی کیس میں سابق DGI فیض حمید کا جواب سپریم کورٹ میں جمع۔ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے الزامات مسترد جواب میں لکھا، شوکت عزیز نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ شوکت عزیز سے کبھی نہیں ملا اور نہ نواز شریف کی اپیلوں پر کبھی بات کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے نے بھی جواب جمع کروا دیا۔ شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا، ان سے ملا اور نہ ہی نواز شریف کی اپیلوں پر بات ہوئی۔ سابق DGI نے سابق جج شوکت عزیز کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ فیض حمید نے سینئر قانون دان خواجہ حارث کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں لکھا کہ شوکت عزیز نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ خود مان چکے ہیں کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی۔ بولے نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اپنے جواب میں فیض حمید نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ ان کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں۔ کیس کے شریک ملزم بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے کا جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے، جس میں شوکت عزیز کے الزامات اور ملاقات کی تردید کی گئی ہے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا، ملک بگاڑنے والے ملک بگاڑ کر چلے گئے۔ وطن عزیز کو دوبارہ پٹری پر ڈالنا جان جوخم کا کام ہے۔ ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ مانسیرا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے، خیبر پختونخوا والوں آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آ گئے۔ خیبر پختونخوا میں 10 سال جن کی حکومت رہی، انہوں نے کیا کام کیے؟ کیا نیا خیبر پختونخوا یا نیا پاکستان بنا؟ کیا کوئی تبدیلی آئی؟ 5 ججز مجھے نہ ہٹاتے تو مانسیرا میں خوبصورت ایئرپورٹ اور میٹرو بس ہوتی۔ مزید کہا کہ لیگی حکومت کو مدت پوری کرنے دی گئی ہوتی تو اگلی باری بھی ہماری ہوتی۔ خوشی تو ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ ملے ہیں، لیکن جو ملک کی حالات ہیں، جو آپ کے حالات ہیں، وہ حالات دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ آج یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا، آج تو میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ الیکشن بھائی ان سب نے انشاءاللہ مجھے ووٹ دینا ہے۔ مجھے مانسیرا
वही लगा है जो मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। यहाँ जो 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरा का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने यहाँ पर, मुझे बताएं क्या बनाया है। केपीके में कोई नया केपीके बनाया, कोई नया पाकिस्तान बनाया? अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था। ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया, बल्कि बिजली सस्ती फराम की। सब्जियां 10 रुपए किलो बिकती थी या नहीं बिकती थी, और घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकाल कर नीचे गिरा दिया। आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागाह नहीं कि कोई तजुर्बा करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ। उन्होंने अपनी जेबें भरी, आवाम से झूठ बोला कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। कहा गया बिलियन ट्री सुनामी लगाऊंगा, जो दरख्त लगे थे वो भी उखाड़ दिए गए। मरियम नवाज का मानसेरा में जल्द से खिताब। कहा आज 10 साल बाद सूबे से निकले हैं, 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल ही दिखा दो। नवाज शरीफ साहब ने 10 साल बाद अगर इलेक्शन का इंतखाब किया तो मानसेरा से किया। और मैं जानती हूँ मानसेरा वालों, आप लोग कैप्टन सफदर से बहुत प्यार करते हो, उसकी वजह है कैप्टन सफदर ने, खुदा गवाह है, खुदा लगती बात है, कैप्टन सफदर ने आपकी खिदमत में उसने दिन रात एक किया। ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना मौसम देखा, एक एक इंसान की मानसेरे वाले की खिदमत में वो हाजिर रहे कि मानसेरा में कोई सड़क बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने, कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो, 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो, कोई स्पीडो बस, कोई ग्रीन लाइन कोई खैबर पख्तूनख्वा में बता दो जो तुमने बनाई हो। और वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जिसको पंजाब में मजाक उड़ा के जंगला बस कहते थे। अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि वही जंगला बस इनको यहाँ पर बनानी पड़ी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में हल्का N123 से बतौर उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। जुमता में खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ चौथी मरतबा आकर अस्पतालों में सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। हमारे दौर में तालीम और सेहत पर तवज्जो दी जाती थी। 8 फरवरी को निकल कर शेर पर मोहर लगाएं और मुल्क को बचाएं। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। शहबाज शरीफ अपने हल्के N123 में इलेक्शन मुहिम के आगाज के लिए पहुंचे तो ढोल की थाप और पार्टी तरानों से उनका इस्तकबाल किया गया। उनके काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन मुहिम के मरकजी दफ्तर गज्जुमता से खिताब करते हुए कहा कि हमने गरीब मरीजों के लिए अस्पताल में अद्वियात फ्री फराम की। आप शहर पर मोहर लगाकर मुल्क को कामयाब बनाएं। गरीब लोगों के लिए मुफ्त अद्वियात मुहैया की जाती थी, वो नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा नौजवान बच्चों को लैपटॉप देंगे, तालीमी वज़ाइफ देंगे। मियां शहबाज शरीफ ने गज्जुमता से लेकर काहना, सूए असल, सेंट्रल पार्क, पुराना काना समेत 20 अहम पॉइंट्स पर रुक कर इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा किया। मियां शहबाज शरीफ के N123 के दौरे के दौरान उनके हमरा N124 के उम्मीदवार राना मुबश्शिर और दीगर रहनुमा मौजूद रहे और उनके काफिले के साथ 20 किलोमीटर तक का सफर करके इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। बिलावल भुट्टो का पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठने का मशवरा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हुए हैं। अगर इनको कल हुकूमत मिली तो इन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैल चुकी है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से ही लड़ाया जा रहा है।
अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। बाकी जो सियासतदान सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। जो गाली की सियासत करते हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। वो आपको लड़वा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हूँ। 4 नहीं, मुझे 1 बार चाहिए। पूरा मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। इस इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। आए तीर पर थप्पा लगाए। आपने दिन रात मेहनत करना है, सुस्ती का गुंजाइश नहीं है। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि तमाम उम्मीदवार इतवार से खुलकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। पीटीआई रहनुमा और वकील अली जफर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा, हम हुकूमत बनाकर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। अवाम ने इलेक्शन में वोट डालने ज़रूर जाना है। जीत पीटीआई की होगी। आपने वोट इसलिए करना है क्योंकि ये पीटीआई का इलेक्शन नहीं, ये अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन है। उन्होंने पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को, चूँकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें और इसको जारी रखें 8 फरवरी तक। ये अहम पैगाम दिया है आज के दिन के लिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास का 7 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना FBR की रीस्ट्रेटजिंग की समरी पर गौर करेगी। इसके अलावा मुल्क की माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में टैक्स सिस्टम और इनलैंड रेवेन्यू के 2 अलग बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे। FBR की तंजीम नौ का मकसद टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना और टैक्स चोरी रोकना है। SME बैंक के सदर की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए भी काबीना एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना ECC और कानून साज कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड के मेंबर्स की तैनाती एजेंडे का हिस्सा है। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC पर पेशरफ समेत दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, पाकिस्तान CPEC की कामयाबी के लिए पूरी तरह से पुरज़म है। तफसीलात रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वी डोंग की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द के अरकान का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक चीन ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान CPEC की कामयाबी के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। उन्होंने CPEC के तहत जारी मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वी डोंग ने निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी से भी मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों की क़यादत के विजन के मुताबिक भाईचारे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में सन वी डोंग की खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा दफाई तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। पाक
फौज के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी अहमियत रखते हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ किया और सी पैक मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर चीन के इत्मीनान से भी आगाह किया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आज यहूदियों के मजालिम पर पूरी दुनिया खामोश है। यहूदियों के एजेंट्स का पहले रोज से मुकाबला किया है। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जहाद का मौका दिया। लकी मरवत में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तल्खियों के खात्मे के लिए हम मैदान में उतरे हैं। हमारी असम्बलियाँ ऐसे लोगों से भरी होती हैं जो इस्लाम के खिलाफ कवानीन बनाते हैं। हमने पार्लियामेंट में हमेशा ऐसे लोगों का रास्ता रोका है। फलस्तीनियों की हिमायत में जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत इंसाफ में किया। मुसलमान मुल्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत में बात की है। इस मौके पर अल्लाह ने हमें ये जुर्रत दी और हम डंके की चोट यहाँ से गए और कतर में हमने हमास की क़ियादत से मुलाकात की। किसी को ये तौफीक तो नहीं हो रही। अमेरिका को कोई नाराज नहीं करना चाहता। फलस्तीन के हक में कोई बोल नहीं रहा। मैदान पे आकर जुर्रत का कोई मुजाहिरा नहीं कर रहा। और ये जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इनमें जुर्रत है? यहाँ तो पाकिस्तान में पार्टियां बनी हैं और यहूदियों के एजेंट बनकर सियासत में आए हैं। तो यहूदियों के एजेंट का मुकाबला पहले दिन से हमने किया है और हमने उनको चारों शाने चित कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और NA 117 से उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि शाहदरा को लाहौर के खूबसूरत इलाकों में शामिल करवाएंगे, इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे और तरक्की का सफ़र शुरू होगा। शाहदरा की तकदीर बदलेगी। शाहदरा को खूबसूरत इलाका बनाएंगे ताकि आप भी डिफेंस वालों की तरह कह सके कि हम शाहदरा में रहते हैं। आपके साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस इलाके के लिए काम करेंगे। समीउल्लाह खान और मैं दोनों भाई मिलके आपके इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। महरूमियां दूर करेंगे, इस इलाके की डेवलपमेंट कराएंगे ताकि इस इलाके के लोग भी कह सके कि हम भी लाहौर शहर में रहते हैं। आज ये लाहौर शहर नहीं लगता, ये तो कोई गांव लगता है। इसलिए इंशाअल्लाह अब आपके दुआओं से, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की तकदीर बदलेंगे, खूबसूरत इलाका बनाएंगे। आप भी डिफेंस वालों की तरह कह सकेंगे कि इंशाअल्लाह मैं शाहदरे में रहता हूं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आप क्रिकेट के मामलात भी देखेंगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब कुरैशी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सरप्राइज एंट्री। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अब क्रिकेट के मामलात भी देखेंगे। निगरान हुकूमत ने फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी की तकर्री की मंजूरी दी। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात किया है और निगरान इलेक्शन कमिश्नर PCB शाह खावर जल्द इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत बैनुल सूबाई राब्ता मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। दूसरी तरफ 19 जनवरी को मुस्ताफी होने वाले ज़का अशरफ का इस्तीफा वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया है। वाज़ेह रहे मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब भी रहेंगे। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर।